my English grammar class. So, do you know what we will start today? Today only we will do one thing. Okay? We will transfer one another conversation to the another person. Okay? हम एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे. You know, जैसे हम चुगली बोलते हैं. Okay? Only we will do चुगली. So today's topic is very interesting. Okay? हमें करना क्या है? एक बात को दूसरे व्यक्ति को बताना है अपनी लैंग्वेज में. Okay? So do you know what is the name of this topic? Yes, narration. Okay, you know, narration or speech. Okay, students. So we will do today. So first, we will know what is the speech and what is narration. होता क्या है narration? पहले तो हमें ये जानना जरूरी है. You know, narration means conversation. Okay. So how we will get it? Suppose, you know, I am just writing here. यहाँ जो conversation होती है वो two parts में divide होती है. पहले direct, okay, and then indirect. Okay, like here are two persons. सबसे पहले यहाँ एक रानी है and second is Meena. Okay, so these two persons, you know, two girls are here and these girls are talking to each other, Rani and Meera. Okay, students, and what they are saying? Rani is saying to Meera that she will not go to school. That जब रानी बोल रही है तो क्या बोलेगी? I am not feeling well, so I am not going to school. So what is Rani saying? I am writing here, Rani said to Meera. रानी ने किससे कहा? मीरा से. So first person is रानी जो कह रही है and मीरा is second person जो सुन रही है. Okay? क्या कहा? I am not going to school today. Okay? रानी is first person क्योंकि वो कह रही है. So the speaker is always first person. रानी is speaker. रानी क्या है यहाँ? Speaker है. And Meera is listener. So Meera is the second person. Listener कौन होता है? Second person होता है. So there are two persons, Rani and Meera. And Rani ने क्या कहा? I am not going to school. Okay, students? So this is direct speech. यहाँ रानी ने मीरा से डायरेक्टली कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ आज. Okay, students? And here indirect speech. Here are two persons, teacher and Rani. Okay? अब टीचर ने पूछा, क्या पूछा? Where is Meera? Sorry, यहाँ here is two persons, teacher and Meera. So teacher ने Meera. So when Meera went to school, then there are two persons, teacher and Meera. Then teacher just not look. Here teacher observed that Rani is not present in the class. Then the teacher asked Meera. What he asked?
Where is Rani? Okay. He asked Meera because Meera is Rani's friend. तो अब मीरा ने क्या कहा? What Meera said? She said that she was not going to school. Okay. Okay, students. That day. Okay. Then अब यहाँ क्या था? रानी ने क्या कहा था मीरा से? मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ आज. ओके. एंड देन मीरा ने क्या कहा टीचर से? कि उसने कहा था कि वह स्कूल नहीं जा रही थी आज. यही तो होगा ना. इनडायरेक्टली ये डायरेक्टली कन्वर्सेशन है जो रानी ने मीरा से कही. बट जो मीरा जो ये रानी ने जो भी बात कही वो मीरा ने किससे कहा? टीचर से. सो देन कन्वर्सेशन इज कंप्लीटली चेंज. ओके. ओके स्टूडेंट्स. जब हम आपस में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करती हूँ. देन अगर हम वही चीज हम दूसरे से कहते हैं कि उसने मुझसे कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रही थी, वह स्कूल नहीं जा रही थी. ओके. देन उसने मुझसे कहा कि वह रोज पढ़ती है. ओके. देन कन्वर्सेशन will be completely changed. Suppose you are watching a movie or your favorite serial. Okay. You are watching movie and your favorite serial, and at the same time the electricity is breakdown. Okay. Then what will happen? You will not be able to see your serial or your movie completely. Then next day your friend here asked to you, have you seen the movie yesterday? आपके मित्र ने पूछा कि आपने वो कल मूवी देखी थी या कल सीरियल देखा था. Then you told him or her कि नहीं, because due to electricity breakdown I couldn't completely watch that serial or movie. So then you asked to him or her कि मुझे बताओ उसमें क्या हुआ था. ओके. तो देन जब आप डायरेक्टली देख रहे हो मूवी, डायरेक्टली सीरियल देख रहे हो या फेवरेट थिंग रिलीजियस जैसे रामायण देख रहे हो, एंड नेक्स्ट डे अगर आप उस समय जब देख नहीं पाते हो ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन यू आस्क द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड इन दैट सीरियल और मूवी टू योर फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड से पूछ रहे. तो दैट फ्रेंड आपको क्या बता रहे हैं? इनडायरेक्टली कि उसने ये कहा ना, वहां ये हुआ था, वो वहां गया था, उसने उससे ऐसा बोला था. ओके. तो देन वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच. जब डायरेक्टली आप मूवी देख रहे हो तो उसमें कन्वर्सेशन क्या सुनोगे? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. एंड देन अगर आपका फ्रेंड बोल रहा है तो क्या कहेगा वो? उसने ऐसा कहा कि वो ये कर देगा. ओके. सो दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच, जो आप डायरेक्टली देखते हो, डायरेक्टली कन्वर्स करते हो, किसी दूसरे से डायरेक्टली बात करते हो. एंड इनडायरेक्ट स्पीच में वही चीज आप दूसरे को बताते हो अपनी लैंग्वेज से. ओके स्टूडेंट्स. तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. देन आई एम शोइंग यू अ शॉर्ट वीडियो in which you can see the conversation of two persons. Okay students, like that.
फर्स्ट थिंग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो क्या है, पहले मैं आपको बताऊंगी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब होता है। इसमें दो चीज होती है। देयर आर टू थिंग्स यू विल नो अबाउट इट। फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड वर्ब। ओके, तो पहले तो आपको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब जानना बहुत जरूरी है। सो आई एम राइटिंग वन सेंटेंस हियर। See, I'm writing name. Okay. Rani said to Meera, comma, inverted commas, I am not feeling well, so I am not going to school today. And here inverted commas close. Okay students, so यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब, here you are looking the verb, वर्ब देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ क्या है ये स्पीकर एंड यहाँ लिसनर। ओके, स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन एंड लिसनर इज सेकेंड पर्सन। So यहाँ here is you are looking at verb also. So this portion is called reporting reporting verb. This portion is called reporting verb. Okay, and here you are looking the inverted commas and everything that is in inverted commas is called speech. ये क्या है, बस स्पीच है, एक भाषा टाइप से कन्वर्सेशन है, ये जो बात रानी ने मीरा से कहा। ओके, so this is only conversation and we call it reported speech. Okay students, and in reported speech you will always see inverted commas. Reported speech is always in inverted commas. Okay, reported speech is always in inverted commas. Okay, starting inverted commas and here ends inverted commas. Okay students, and this is the conversation that the first person or the subject told to object. Okay students, and reporting verb. Okay, in reporting verb this person said to, asked, you always look that कि क्या कहा, पूछा. Okay, so in that by this verb you can observe, you can identify that which type of sentence is here and how you will change. So this is called reporting verb. Okay, okay, is that clear or not? Okay, very good. And how we will change it, अब हम देखेंगे बदलते कैसे हमें से. ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास. एंड जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, यू आर लुकिंग हियर इन्वर्टेड कॉमास एंड small inverted commas, single inverted commas and double inverted commas. ओके, यहाँ कॉमा है और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है. जब हम इसे हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, what replace here,
in affirmative or negative sentence. ओके, इन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपका जो सेंटेंस है वो या अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो. ओके, सो व्हाट वी विल राइट हियर, व्हाट वी रिप्लेस हियर, क्या लिखेंगे हम, दैट. ओके, हर टाइप के सेंटेंस में ये डिफरेंट होता है. हर टाइप के सेंटेंस में व्हेन यू विल रिप्लेस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, so you write different things. Okay, but in affirmative and negative you will write that in place of inverted commas. Okay, so you should always remember that in affirmative or negative sentence you will write only that in place of inverted commas. Okay, और ये तो आपकी हो गई फर्स्ट थिंग जो आपको बदलनी है. एंड द फर्स्ट थिंग इज, आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपको दैट लगाना. उससे पहले रानी सैड एंड योर ऑब्जेक्ट है, आर लुकिंग ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट है तो आप सैड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में. अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, देन ओनली सैड है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, सैड. ओके, सो रानी सैड दैट. अब हमें ये चेंज करना है. हाउ वी विल चेंज, लुक, यहां हम सेंटेंस को चेंज करते हैं. जब आप किसी से कोई चीज कहते हो तो क्या करते हो, मैं स्कूल जाती हूँ, है ना, मैं ये करती हूँ, मैं सुबह तैयार होती हूँ, एंड देन आई रीड द बुक, I complete my study and everything that in that way. Okay, so जो प्रेजेंट टेंस है, जब हम वही चीज किसी दूसरे को बताते हैं कि उसने ये कहा, तो देन सेंटेंस भी चेंज हो जाता है. आप वो प्रेजेंट में बता रहे थे, वहां वो पास्ट में हो जाता है कि उसने ऐसा कहा था. अब वो कह नहीं रही, वो तो कह चुकी, एंड देन आप उसकी चीज को किसी दूसरे को बता रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, पास्ट. तो प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट. ओके, सो एवरी प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस. ओके, हाउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट. ओके, लाइक अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों, डू, डज. ओके, तो वो हम किस में चेंज कर देंगे, डिड में. अगर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, इज दैट क्लियर. अगर आपका वाज वो इज एम है, यू नो इज एम एंड आर विल बी वाज एंड वर. इज एम आर किसमें चेंज हो जाएगा, वाज एंड वर में. एंड हैज एंड हैव किसमें चेंज हो जाएंगे, हैड में. ओके, इज दैट क्लियर नाउ. तो यहाँ पर you're getting this, in which sentence this conversation is, am and am is here. Okay, so this is a present continuous. Okay, so how we will change, it, Rani said that I will be changed into, रानी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रानी ने कहा कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ. तो देन अगर आप वही चीज दूसरे से कहोगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, उसने कहा. हु इज दैट उसने, कौन है ये उसने,
वो उसने कौन है, रानी। तो देन रानी गर्ड, गर्ड के लिए क्या लगाएंगे, शी। एंड हियर इज एम आर, सो आर यू लुकिंग हियर, इज एम आर विल बी चेंज इनटू वाज एंड वर, सो एम का क्या हो जाएगा, वाज। शी के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, वाज नॉट फीलिंग वेल, so she was not going to school and today का that day हो जाता है, ओके ओके। एंड आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, you only look towards the verbs, that is in present verbs, okay, and you have to change these present verbs into past verbs, either this is helping verb or anything else or main verb, only you have to change it in past, okay friends, is that clear or not? So after that we will know what things we will change, एग्जैक्टली हम कौन कौन सी चीजों को चेंज कर सकते हैं और किस में चेंज कर सकते हैं। सो आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स दैट एंड कंसंट्रेट हियर, ओके। सो आई टोल्ड यू कि मैंने प्रेजेंट टेंस किसने चेंज किया, पास्ट टेंस, ओके। In that every indefinite, perfect, continuous and perfect continuous will be changed into indefinite का क्या हो जाएगा, present indefinite, past indefinite and present perfect, past perfect and present continuous, past continuous and present perfect continuous will be changed into past perfect continuous, okay। and how we will change, मैं इसे ब्रैकेट में करती हूँ and then मैं यहाँ लिखती हूँ कि हम कैसे चेंज करेंगे। We will change do and does into did, okay, and verbs first form will be changed into verbs second form. All here you will see is, am, are. So in direct speech, so while making indirect speech you will change this am, are into was and were, okay, it's very simple. And here when you will observe has and have, has and have are the forms of present perfect tense, okay, and while making indirect speech you will change has and have into had, okay students, got it, very good। and after that you will look that अब हमारा जो प्रेजेंट टेंस था वो तो हमने पास्ट में चेंज कर दिया, बट अब हम देखेंगे कि हमारे पास्ट टेंस अगर आ जाए तो हम किस में चेंज करेंगे। अगर आपकी कन्वर्सेशन ऑलरेडी पास्ट में हो तो आप उसे कैसे चेंज करोगे, ओके, दैट इज द पॉइंट। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, हमारा पास्ट इंडेफिनिट, अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा तो देन हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट टेंस का पास्ट हो जाते हैं, सारे प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में, बट पास्ट टेंस ऑलवेज रिमेन पास्ट, ओके। फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी बट पास्ट टेंस पास्ट ही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों क्या आता है, डेड आता है, एंड
वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है. ओके, या तो डिड आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी. सो देन हाउ वी विल चेंज डिड एंड वर्ब, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो देन यू विल चेंज इट टू हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जो कि हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड. ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड if you observe in indirect speech that हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का तो पास्ट परफेक्ट हो गया, बट अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो सेम ही रहेगा. एंड देन हम पास्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लाइक पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज एंड वर. तो देन सिंपली आपको वाज एंड वर को हैड बीन में चेंज कर देना. वाज एंड वर को किस में चेंज करना है? हैड बीन. इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, अब ये हो गया हमारा पास्ट. और हम कौन कौन सी चीजें चेंज करते हैं? और हम करते हैं विल. विल का क्या हो जाता है? वुड. शैल. शैल का क्या हो जाता है? शुड. ओके, मे का माइट. ओके, कैन का could. Okay friends, so these are models. ये हमारे मॉडल्स हैं जो हमारे चेंज हो जाते हैं. एंड एक्सेप्ट इट हम चेंज करते हैं नाउ का देन. ओके, एगो का बिफोर. ओके स्टूडेंट्स, मैं रिमूव इट. आपको समझ आ गया ना? मैं थोड़ा हटा दूं इसे, बिकॉज आई विल राइट सम अदर थिंग जो हम चेंज करते हैं ना, वो हम लिख रहे हैं. एगो का क्या हो जाता है बच्चों? बिफोर. ओके, एंड दिस का, दिस विल बी चेंज इनटू दैट. दिस का दोज हो जाएगा. एंड हियर का देयर चेंज हो जाएगा. हियर विल बी चेंज इनटू देयर. ओके, एंड come will be changed into go. Okay students, and after that yesterday, the previous day, and tomorrow will be changed into the next day or the following day. Okay, and today will be changed into that day, and tonight, tonight का क्या हो जाता है? That night. Okay friends, last night will be changed into the previous night. Okay students,
आई थिंक यू गॉट इट. समझ गए होगे अब आप कैसे चेंज करना है. एवरी प्रेजेंट टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट एंड past tense will remain same. Sometimes past indefinite will be changed into past perfect and past perfect will be same and past perfect past continuous will be changed into past perfect continuous and past perfect will be same. And if we talk about future tense, in future tense what type of helping verb will be there? Will, shall. Okay, so will be changed into would, shall, should, can, could, may, might. Okay, and now, then, ago, before, this, that, these, those, here, there, come, go, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, and today, that day, tonight, that night. So these are only the change. You have to keep all the things in your mind that what will be changed into which thing. Okay, students, it's very easy. If you know about all these things, that it will not be so complicated to change direct speech into indirect speech. Okay, so now we will change some of the sentences here, keeping all these things in our mind. Okay, and these are only related to affirmative or negative of every tense. I am not talking about interrogative at this time. Okay, so we will do only practice of affirmative and negative sentences. First, we will keep all the things that we change while making direct to indirect speech. Okay, first I told you that what is directive speech? The direct conversation of first person or second person or any other person. The direct conversation is called direct speech. And if we tell all these conversation to other person, then it will be, what it will be? It will be called indirect conversation. Okay, and before making you understand by practice set related to affirmative or negative, I just want to tell you about how to change pronouns. Okay, so I'm making a chart here of pronouns, then you should know about it. It's a pronoun chart and I told you about it you before. These are persons. Here, subjective case and subjective case or nominative case, both are same. Okay, there is no difference in subjective case or nominative case. So I am writing here both of the names, subjective or nominative. Okay, and after that here will be possessive case. Okay, students, and after that here will be objective case. Okay, so as we told you that here the conversation will be going on between first person or second person and it will be transferred to the other person. So here are only three persons. First person is divided into two parts, singular and plural. Singular person is I and plural is we. Okay, and
what is the possessive case of I? My or mine. And objective case is me. Okay, friends? And then after that, we is the first person. So we is the first person plural. And what is the possessive case of this of we? Our and ours. And here us. Okay? So this is the completion of first person. And after that we will talk about second person. Do you know? I told you it before about this. कि first person होता क्या है? Speaker. Who is the first person? First person is always speaker. And here second person. Second person, you, your, and yours. And here will be you. And third person कौन होता है बच्चों? You know, second person listener. जो सुनता है. As I am making you understand, so then I am first person. Okay, you are the second person. Therefore, because you are getting everything from my side, so you are the second person. Okay, friends. And then the third person is the person who is not present at this time when conversation is going on, but we talking about the third person. So we call it he, she, they. Okay. So it's called third person. Third person is singular boy. He, his, and him. And singular girl, she, her, and hers, and her. And singular non-living things for it, we will use it, its, and it. Okay. And if we talk about plural of third person, it will be they, their, or theirs, and them. Okay, students? So in indirect speech, how we will change it? अब मैं बताऊंगी change कैसे करते हैं. So the procedure of changing it, 1, 2, 3 upon sun. अब आप कहोगे 1, 2, 3 upon sun है क्या? What is this? It's a new thing. So then first person के जो pronouns है ना, first person, like that, first person. Okay, जो speaker है, वो किसके according change होते हैं बच्चों? Speaker कौन होता है? Subject, जो बात कर रहा होता है, वही तो speaker होता है ना. First person कौन होता है? जो बात कर रहा होता है, और बात करने वाला क्या होता है? Subject. तो then first person के जो pronouns है, वो किसके according change होंगे? Subject के according. Okay? एंड सेकेंड पर्सन कौन होता है? जो लिसनर होता है. और जो लिसनर होता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट. तो सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउंस है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ऑब्जेक्ट के. ओके. एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नो चेंज. एंड मींस नो चेंज. इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी शॉर्ट फॉर्मूला. आपको बहुत जल्दी भी याद भी हो जाएगा. 1, 2, 3 अपॉन सन. Okay, so तेईस बटे सन. Okay students, and इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. And then I will make you understand how we will change pronouns and the tense in indirect speech. While making indirect speech, हम बनाएंगे कैसे? ले लिया?
सो आई एम राइटिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस हियर, और आप उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि चेंज कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so students, here is the practice set, and we will practice some of the sentence related to affirmative and negative sentence. So the first is, they say we are going to Agra next week. First I want to say you one thing कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हुई, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, ओके, प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर टेंस में है, देन इट विल बी not it, reported speech will not be changed. Tense in reported speech will not change. ओके, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना वो बदला ही नहीं जाएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो एज इट इज रहेगा। यू नो, प्रेजेंट का पास्ट नहीं होगा एंड पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड वन ऑफ द कंडीशन इज आल्सो हियर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब, और एक और कंडीशन आ जाती है यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, वन कंडीशन इज हियर कि अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी चीज कही गई है जो बहुत ही सही है, इट ऑलवेज कैन बी राइट। इन प्रेजेंट में भी वही है, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है तो पास्ट में भी पूरब से निकलता था, अभी भी पूरब से ही निकलता है, फ्यूचर में भी आई थिंक पूरब से ही निकलेगा। ओके, यू नो, जो सन है वो वेयर इट द सनराइजेस, इट्स in past always rose in used to rise in east, and in present आप देखते हो कि ईस्ट में निकलता है। ओके, एंड आई थिंक इन फ्यूचर में भी यही रहेगा, ये चेंज ही नहीं होगा। तो जो चीजें कभी बदल नहीं सकती, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, वो हम कभी चेंज ही नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय भी उन्हें सेम रखा जाता है। ओके, एंड कोई प्रोवर्ब हो, जो कहावतें हैं ना, पुरानी कहावतें, टू एंड टू मेक फूड एंड टेक फॉर दैट, एंड जो अभी हमारी जो ओल्ड प्रोवर्ब्स है वो भी कभी चेंज नहीं होती है। ओके, एंड बाय कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन अवर माइंड we will do for the sentences here. They say we are going to Agra next week, so how we will change? They say, अब ये बताइए कौन सा टेंस है ये? से। ओके, वेरी गुड, इट्स प्रेजेंट टेंस। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है बच्चों? प्रेजेंट टेंस में। तो जैसा कि मैंने कहा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो देन रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते हैं। यू नो, टेंस नहीं बदलते, केवल प्रोनाउंस तो चेंज करते हैं। प्रोनाउंस तो बदलेंगे बट टेंस नहीं बदलेंगे। ओके, और आपको क्या बताया था? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाना है? दैट। ओके, एंड वी, हमने यू नो आई टोल्ड यू 1 2 3 अपॉन सन, यही बताया था ना बच्चों। तो बताइए वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था? सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट क्या है? दे। तो वी का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। आर का आर ही रहेगा बिकॉज टेंस इज इन प्रेजेंट। दे आर गोइंग टू आगरा
next week. Okay, and here second is also here. He, अब ये कौन सा टेंस है? सैड. वेरी गुड, इट्स ए पास्ट. तो जब पास्ट है तभी हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे. अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर है तो चेंज नहीं करेंगे टेंस. ओके, तो देन यहाँ पर सैड का सैड ही रहेगा और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या लगेगा बच्चों? दैट. एंड आई का, आई इज द फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन विल बी सब्जेक्ट. हियर विल बी क्या होगा? आई का क्या हो जाएगा? ही. शैल का क्या हो जाएगा? शुड. किल द स्नेक. कितना सिंपल है. कुछ और चीज एज इट इज ही रखनी है सारी चीजें, बस टेंस चेंज करके. ओके, एंड नेक्स्ट द टीचर सेड. ओके, एंड इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब लुक द सन राइजेस इन द ईस्ट. क्या है ये? हम इसे चेंज करेंगे कि नहीं? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सो वी विल नॉट चेंज इट. इट विल बी सेम. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब से निकलता है. इट मीन्स निकलता है, निकलता था और निकलता रहेगा. ओके, ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? एंड हियर विल बी नेक्स्ट दे सैड. अब हम क्या करेंगे? वेरी गुड, दैट. अब हम दे को चेंज करेंगे दे के अकॉर्डिंग. क्या होगा? दे. एंड केम. विच टाइप ऑफ फॉर्म केम इज हियर? केम इज सेकेंड फॉर्म. और सेकेंड फॉर्म का क्या हो जाता है बच्चों? सेकेंड फॉर्म किस में यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में. और व्हाट आई टोल्ड यू, पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट. तो सेकेंड फॉर्म का क्या हो जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म. हैड कम होम. लास्ट का क्या? लेट. एंड लास्ट का क्या हो जाता है? प्रीवियस. नाइट. लास्ट नाइट का क्या बताया था? प्रीवियस नाइट. ओके, कितने सिंपल है ना. अब आप प्रैक्टिस करोगे देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. आई नो you will do practice and it will be very clear to you and you will able to do like that. Okay students, and और भी हम प्रैक्टिस सेट लेंगे, बट नेक्स्ट हम यू नो कुछ और सेंटेंसेस भी ले लेते हैं हम प्रैक्टिस सेट में. ओके, सो दिस इज our next practice exercise. We will do these sentences and no, you will got everything. You will get everything whatever I want to make you understand. He said to his father, Mohan has broken my slate. So here will be he. Said to will be changed into told. As I told you, if object will be there, then said to will be changed into told. अगर said अकेला है तो said ही रहेगा. So his father, it will be say. और आपको इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह that. And here Mohan has will be changed into had. Has किस में चेंज होता है? had में. Has have will be had. Had and had के साथ broken ही आता है. broken and my is first person. अब हम my को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? What I told you, 1 2 3 upon sun. I को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट क्या है? he. तो my का क्या हो जाएगा? his slate. Okay. He told his father that Mohan had broken his slate. Okay, friends. And next, Ram said to Syam, you can do me a favor if you like. So here will be Ram. Said to will be changed into told.
and here will be Syam, and in place of inverted commas will be there that, and you is second person, and second person will be changed according to object, and object is Syam, और Syam क्या है? He. अब हम he के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना, you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? he के अकॉर्डिंग, तो देयर विल बी he, एंड कैन का क्या हो जाता है बच्चों? कोड, एंड डू, क्योंकि कैन कोड के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ओके, डू, एंड मे विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू राम, राम क्या हो गया? ही, अब ही के अकॉर्डिंग मी क्या हो जाएगा? आई, माई, मी के साथ ही हमें चेंज करना है, ही, हिज एंड हिम, तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों? हिम, हिम ए फेवर, इफ यू चेंज होगा श्याम के अकॉर्डिंग ही, एंड लाइक इज फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, लाइक्ड, है ना? कितना सिंपल है, सारी चीजें ऐसे ही रखते जाओ, बट टेंस आप देखो, और जो चीज मैंने लिस्ट में आपको बताई थी वही चीज चेंज करनी है। एंड दे सेड दैट, वी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दे, क्या हो जाएगा? दे, एंड वर्ब, वर्ब किस में चेंज होता है? आई टोल्ड अबाउट इट, यस एग्जैक्टली, वर्ब विल बी चेंज इनटू हैड बीन, वर्ब किस में आता है? प्रेजेंट, वो पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और क्या हो जाएगा यहाँ? हैड बीन, एंड गोइंग का गोइंग ही रहेगा, टू स्कूल, और यस्टरडे भी चेंज होगा, ओके। तो फर्स्ट आप वो चीजें अंडरलाइन कर लिया करो जो आपको चेंज करनी है, ओके स्टूडेंट्स। सो यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे, ओके। एंड हियर विल बी लास्ट सेंटेंस जो हम चेंज करने वाले हैं, द मैन सेड दैट, अब आई इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को मैन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मैन कौन हो गया? ही, एंड हियर विल बी ही रिफ्यूजेस, फर्स्ट फॉर्म है ये, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, एंड फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, रिफ्यूज्ड टू टेक योर, यू है ना, यू किसके अकॉर्डिंग? अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे, और यू तो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा ना, ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर, देख रहे हो ना आप लोग, सेट के बाद कुछ भी नहीं है, तो देन हमने यहाँ सपोज कर लिया, कुछ भी सपोज कर लीजिए, मी सपोज कर लीजिए, एंड या हिम सपोज कर लीजिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज, ओके। आई रिफ्यूज टू टेक यू बैक, तो हिम हम यहाँ लिखते हैं, टेक हिम बैक into the house, okay, लगे ना इजी? कॉम्प्लिकेटेड है ये? आर यू गेटिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड? मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे बच्चों। इफ यू विल डू प्रैक्टिस देन डेफिनेटली यू कैन डू बेटर, ओके। in my next video I will told you about interrogative and imperative and exclamatory, optative, बहुत सारे types होते हैं, okay, but in my next video I will tell you about interrogative and imperative sentences, how you will change interrogative and imperative sentence into indirect speech, okay, and after that exclamatory and optative, okay, and other types of next, okay students. So it's a very बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप समझेंगे तो देन इट इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड एज यू थिंक बिफोर। अब आपको इजी लग रहा है ना पहले से कि नहीं? वेरी गुड, सो डू प्रैक्टिस, ओके।